میں سب سے پہلے اس سیشن کی جو ہے چیئر کرنے والے محسن محترمہ فاطمہ زہرا سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے آئیں اور اپنے کرسی سے ذرا سنبھالیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے معزز مقام نگران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے بیٹھے ہیں. جلیل طاہر، سبھی ناز صاحبہ، عشرت فاطمہ، پروفیسر عشرت نیسا، عابد اللہ صاحب، شبیر احمد ڈار، حاجرہ. آئیے. ہم نے اس کے لیے جو ہے مخصوص طور پہ جو ہے فاطمہ زہرا صاحبہ کا جو ہے انتخاب اس لیے کیا کہ ہمارے اس سیشن میں خواتین کی حیثیت بہت زیادہ اس مناسب سے ہم نے انہیں جو ہے کرسی صدارت بیٹی اجازت دی. اب میں اس سب محترمہ کا جو ہے کی شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں ہے. ابھی کے لوگوں نے کافی رکھتے ہیں. اپنے 30-35 سال کامیابی کے ساتھ ایک بہترین مستقبل کے بعد انجام دے کر اور ضلع حاصل کے مستقبل جو انتظام کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد آگے جو ہے ضرور شروع ہیں اور جن کا ایک شہری مجموعہ آ چکا ہے اور ابھی اپنوں میں کافی آ چکا ہے. میں جو ہے ثناء اللہ صاحب کے حوالے کرتا ہوں. السلام علیکم. میں سفینہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مطالعہ پیش کریں. میرا مقالے کا عنوان ہے نظم کا بدلتا ہوا منظر. اس میں بھی جو ہے مخصوص طور پر نظری نظم کو دیا. مائک نیچے کر لیجیے. ادب میں کوئی بھی تبدیلی یا کوئی بھی انقلاب ایک دم سے نمودار نہیں ہوتا. اس تبدیلی یا انقلاب ہوا کرتا ہے کئی دہائیوں کے بعد ادبی تبدیلی تحقیق کرتی ہے. اس میں شک نہیں کہ نئی صورتحال میں جو الیکٹرانک میڈیا، بین الاقوامیت، انفارمیشن ایکسپوجر، مشاہدہ دنیا کو ایک گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا. فرد اور فرد، معاشرے اور فرد اور فطرت رشتوں کی بات چیت کے عمل کو تیز تر کر دیا ہے. نئے فکری اور تہذیبی رویوں اور چیلنجوں اور خطروں کو جنم دیا ہے اور ادبی تصور کو بھی متغیر کر دیا ہے. نیا نظم نگار جانتا ہے کہ انسان سماجی اور تہذیبی سطح پر ہی نہیں بلکہ کائناتی سطح پر بھی ہماری تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے اور کوئی طالب علم فلسفہ یا نظریہ اس کے تحفظ کی ضمانت فراہم نہیں کر سکتا. تباہی کا احساس اس کی حیثیت کا جزو اعظم بن چکا ہے. بیشتر نظم نگاروں کی تخلیقات میں ایک ایسا شعری کردار ہوتا ہے جو سماجی اور معاشرتی آگہی کے ساتھ ساتھ بشریاتی احساساتی تقاضوں کا بھی محرک ہے. ظاہر ہے کہ متضاد رویوں کا عمل ہے جو نظموں کی خاصیت بن جاتا ہے. آج کی جو نسل سامنے آئی وہ جدیدیت اور مواد جدیدیت سے مختلف ہونے کا احساس دلانے ہے. نثری نظم کے بارے میں نوبی راشد سے پوچھا گیا کہ انہوں نے نثری نظم کو شاعری کے زمرے میں کیوں شامل سمجھا تو راشد نے جواب میں کہا جب ہم آزاد نظم کا آغاز کیے تو اس وقت لوگ اسے شاعر نہیں سمجھتے تھے مگر وقت نے بتایا کہ وہ شاعری تھی. جیلانی کامران لکھتے ہیں نئی شاعری کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ تنہائی جو ہمارے دلوں میں ہے اس احساس سے حوصلہ کر سکے جو احساس ہمیشگی سے پیدا ہوتا ہے. نیکی، خوشی اور خوبصورتی لازوال ہیں اور انسان انہی کا متلاشی ہے. نثری نظم کوئی تجربہ محض نہیں، اس کی اپنی روایت ہے. مانا کہ یہ زیادہ پرانی نہیں ہے. نثری نظم ہمیشہ نئے امکانات اور تصورات سے روکنار رہی ہے. نثری نظم جدید اردو شاعری میں منفرد تخلیقی اثار کی حیثیت رکھتی ہے. آزاد نظم ایک مستحکم شعری روایت کی حیثیت سے ابھری اور کسی حد تک نثری نظم اس روایت کی سب ورژن ہے جو مابعد جدید عہد کے بعد کی شعری رجحانات کی آئینہ کار ہے. نثری نظم کے فروغ کا مسئلہ ایک ثقافتی مسئلہ ہے. یہ ہماری زندگی کے مزاج اور ہمارے گرد و پیش سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. مغرب میں نثری نظم کو جو فروغ ملا اس کی وجہ ادبی روایت کی گہرائی کے ساتھ وہ ثقافتی آزادیاں بھی ہیں جن کا تیسری دنیا کے ملکوں میں ابھی امکان ہے. روزمرہ کی زندگی نثری نظم کے لیے براہ راست مواد فراہم کرتی ہے اور جیتی جاگتی نظموں کو جنم دیتی ہے.
रोजमर्रा की जिंदगी के तजुर्बे इतने सच्चे, खरे और मानूस होते हैं कि किसी तरह के तखय्युल या तसव्वुर की जरूरत ही नहीं देती। इस लिहाज से देखा जाए तो नस्ली नज़म हमारा रिश्ता जिंदगी के राज तजुर्बों से जोड़ती है। कुली इंसानी तजुर्बे की जस्तजू में अगर कोई शेरी सिंफ है तो वो है नस्ली नज़म, जो एक नया रुझान बन गई है। गोया एक तो हमारे राहत को नए शायरी की जरूरत थी, दूसरे तन्हाई जिसे हौसला दिए जाने के लिए खुशी और खूबसूरती का हसूल लाजिमी ठहरा था। नई सिर्फ हमेशा ऐसे लिखने वालों की मधुने मिन्नत रही जो पजीराई से बेनियाज उसमें काम करते चले जाते हैं और बिला पर उसे कायम करके दम देते हैं। एक नज़म रास्ता जिसे सहरली ने लिखा है उसे पेश करना चाहूंगी। मैं जानती हूँ कि मौत के कई रास्ते हैं, जैसे रेल की पटरी, समंदर और तेरी बदली की झील सी गहरी आंखें, मगर जिंदगी का एक ही रास्ता है, खामोशी। नस्ली नज़म का रुझान आजादी के बाद शुरू हो गया था। किशोर नाहिद, फहमीदा रियाज, मुनीर नियाजी, बलराज कोमल, शहरियार, इदा फजली, इन सब में नस्ली नज़में नहीं हैं, लेकिन पहले ये लफ्ज़ तजुर्बे के तौर पर था। शोरा मुँह का जायका बदलने के लिए नस्ली नज़म कहते थे। अब मामला मुख्तलिफ है, क्योंकि नई नस्ल के कई शोरा के लिए नस्ली नज़म अब तकनीकी इज़हार, शेरी आहंग और शनाख्त का मसला बन चुकी है। अनवर असल राय लिखते हैं, नस्ल की शायरी या नस्ली शायरी उस इम्तियाज़ी आहंग पर इसरार करती है जो फर्क की शनाख्त होता है, और मेरे नज़दीक फर्क की इंफरादियत की बका और इज़हार दूसरे मकासद से ज़्यादा अहम है। रहा एक दराज कि ऐसी सहूलत से तो हर कोई शायर हो जाएगा, फिर मैं कहता हूँ अगर हो जाएगा तो इसमें क्या कबाहत है, शायर ही होगा, कोई चोर, डाकू या लुटेरा तो नहीं होगा। डॉक्टर वजीर आला का कहना है कि मैं नस्ली नज़म का मुखालिफ नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो इस सिल्क में बड़े इम्कानात दिखाई देते हैं, मगर इन इम्कानात के बालावा होने के लिए ज़रूरी है कि नस्ली नज़म को किसी दूसरी सिल्क का ताबे मुहम्मद बनाने के बजाय उसे अपने मुनफरिद औसाफ को मुतशक्किल करने का मौका अता किया जाए। नस्ली नज़म शायरी नहीं, क्योंकि ये शेरी आहंग से इबारत नहीं है, मगर साथ ही साथ ये अफसाना या इंशाइया नहीं है। लिहाजा नस्ली नज़म लिखने वालों को चाहिए कि वो मुखालिफाना रवैयों से बेनियाज होकर तख्लीक कारी में मुनहमिक रहें। नस्ली नज़म उरूस की जकड़बंदियों के खिलाफ एक बगावत थी। गुज़िश्ता दहाइयों में ये नस्ली नज़म बिलाशुबा एक नए शेरी तजुर्बे के सांचे में ढल चुकी है। ये नस्ली नज़म 21वीं सदी का रूप है। तसलसल ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि आज़ाद नज़म का सब वर्जन भी कहीं मौजूद है। इससे ताल्लुक़ रखने वाला एक मसला रिदम का है। रिदम जब तक लीगलाइज नहीं है उस वक्त तक किसी नज़म की तख्लीक मुमकिन नहीं। ये बात नस्ली नज़म पर भी उतनी की सारी आती है जितनी आज़ाद नज़म पर। 21वीं सदी की नस्ली नज़म की जमालियात को मुश्तरक लफ्ज़ियात ने गैर मामूली तौर पर निखारा है। हिंदी अल्फाज का बर्जस्ता इस्तेमाल, दियोमालाई उछाना, लाशौरी तफाज़ुल के बेसाख्ता बयान ने दौरे हाज़िर की नस्ली नज़म को एक मुनफरिद शेरी तजुर्बे का वस्फ़ पूरा किया है। शेरी आहंग के बगैर नस्ल को उसकी लिसानी चक्कर से आज़ाद करना एक मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पर सलीम आगा फजलवाश की नज़म गिरदोपोश मुलाहिज़ा, गिरदोपोश को छूकर उसके भीतर की कथाओं को बूझना मुहाल है। शायद किसी सुंदर गिरदोपोश के अंदर शिकस्ता महर बलब लफ्जों का शहर खामोशा आबाद हो, और ना जाने किसी पोसीदा गिरदोपोश के अंदर हंसमुख सजीले धड़कते रूपों की बस्तियां घूम रही हैं। मगर ये भी तो सच है कि गिरदोपोश और चेहरों के सब सरबस्ता अफसाने, कच्चे और मंदमल जख्मों के सारे खुरन दिलों की खुशबू और खुशियों की काल रोटियों में अज़्म से दफ़न हुए। नस्ली नज़म मोहब्बत के लतीफ़ जज्बात की तर्जुमानी का एक पुरस्कार और दिलफरेब वसीला बनकर सामने आई है। जज्बे के खरेपन और इज़हार की बेसाख्तगी की एक मिसाल नज़म धूप में मुलाहिज़ा कीजिए। लफ्ज़ों की खिड़कियों से धूप उतरी और धीरे धीरे मेरे आंगन की हर चीज़ को अपनी आगोश में समेटती चली गई। धूप हर बार लौट जाती है फिर आने के लिए, धूप के जाने और लौट आने के बीच का वक़्फ़ा बड़ा सबर आज़मा होता है। आज धूप की आमद ने मुझे आजमाइश में डाल दिया है। धूप एक चेहरा बन गई है, आंखें, लब, गेसू, आरिस, चेहरे के मौसम का पेड़ मेरे आंगन में उगाया है। पत्ते सदा देने लगे हैं, लातेदार परिंदों ने शाखों पर डेरा डाल दिया है। गुनगुनाती हुई धूप
پیڑ کے اندر کہیں غائب ہو گئی. متعدد نوجوان شعراء نثر نظم کی طرف متوجہ ہیں. اس سلسلے میں کئی نام لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے تجربے سے اس رجحان کو آگے بڑھایا ہے. مثلاً سارا شگفتہ، فاطمہ حسن، عذرا عباس، افضال سعید، شاہد حبیب، ذیشان صاحب، عشرت آفرین، صلاح الدین پرویز، خلیل محمود، چندربھان خیال، شہاب اختر، شاہد عزیز وغیرہ. نثر نظم نے گزشتہ دہائی میں موضوعات کی کثیر الجہات کیفیات کو گرفت میں لیا ہے. موضوع در حقیقت کسی مجرد عقائد کا نام نہیں، دعائیہ نجات ماورائیت کے ساتھ ساتھ عذیت کا احساس بھی دلاتا ہے. علاوہ ازیں نظم پابند کو یا آزاد نظم سازی کا عنصر کسی حد تک کار فرما لیتا ہے. نثر نظم میں لسانی اشارے کی اس قدر روشن دلیل ہے کہ نثر نظم اس لامتناہ سلسلے کی کڑی ہے جو طے شدہ ادبی قدروں کو متواتر سپورٹ کرتا چلا جاتا ہے. ڈاکٹر جمیل تاج صاحبہ سے میں التماس کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنا مطالعہ پیش کریں. ان کے مقالے کا عنوان ہے افسانہ اور افسانچہ کا بدلتا ہوا منظر عام. میرے جائزے کا موضوع پیش نظر افسانے اور افسانچے کے بدلتے رجحانات ہیں. اردو کی دیگر اصناف ادب کی بنسبت افسانہ ایک نوعمر صنف ہے. اگر سجاد حیدر الگرم کی سن 1966 پر ذیلی کہانی نشا کی پہلی ترین کو اردو کی پہلی کہانی قرار دے تو اس اعتبار سے افسانے کیوں 100 سال سے زائد ہوئی. اس مختصر عرصے میں افسانے کی نقوش میں حیران کن تبدیلیاں آئی. خصوصاً ساتویں دہائی کے تجربوں کو افسانے کی دنیا کا ادبی دھماکہ لٹریری ایکسپلوژن کہا جا سکتا ہے. نئے لکھنے والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان تصورات کے تحت کس نوع کے افسانے لکھے. اس دور میں افسانے کا رشتہ زندگی اور خالق سے جڑ گیا. بیانیہ کی کوشش نے خالق کو گرویدہ کیا اور افسانے کا متعلق خالص کی جانب رخ کرنے پر مجبور ہوا. مختلف دور میں افسانے کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا رہا، جیسے کہانی افسانہ، ترقی پسند افسانہ، جدید افسانہ اور کم علامتی تجریدی تمثیلی افسانے بھی کہا گیا. اب اس پر مواد جدید افسانے کا لیبل چسپاں کیا گیا ہے. افسانے میں تبدیلی کی کچھ اس انداز سے آئی کہ نوجوان افسانہ نگاروں کے علاوہ پختکار تجریدی افسانہ نگاروں نے کنٹرک طرز بیان سے اپنا ناطہ توڑا اور ایسے علامات میں وضع کی جسے بآسانی قبول کیا گیا. نئی نسل نے حقیقت پسند افسانہ اور جدید افسانہ دونوں کا احترام کیا اور اختلافی باتوں سے اعتراض کیا. اس نسل کے افسانہ نگاروں کا اہم رجحان رویے کی تبدیلی تھا. اس دور میں گلوبلائزیشن یعنی عالم کاری کے اثر سے ہماری تہذیب و ثقافت کا منظرنامہ بدلنے لگا اور معاصر افسانہ اس تیزی سے بدلتے منظرنامے کا حصہ بن گیا. اس دور میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور اقتصادی سطح پر تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں جس سے بے شمار مسائل کھڑے ہو گئے. منتخب افسانہ کے مجموعے اور حالیہ ادبی رسائل میں شائع شدہ افسانوں کی روشنی میں اس کے موضوع اور تکنیک کا جائزہ لیا گیا ہے. معاصر افسانہ نگاروں نے مختلف موضوعات اور مختلف کرداروں پر کہانیاں لکھی. انقلابی صدی میں جینے والا مادہ پرست پر حیران کن اجرا کی، پروردہ بیڑا، اونس، تنہائی، برزخ میں جلدی ہونے، جبر و تشدد کا شکار غریب طبقہ فسادت کی آگ میں بھسم ہوتا. اخلاقی فرقہ ترقی کے حق میں اپنی دروپٹی کو داؤ پر لگانے والے مرد، مجبوری و مفاہمت کی سرحد پر مصروف عورتیں، یہ اور اس قسم کے بے شمار تصویروں کے کولیج سے معاصر افسانہ کا کینوس اہم بنایا. معاصر افسانے کا ایک موضوع خبروں کا زوال اور ساتھی سماج کی متعاون فضا ہے. اس ضمن میں پہلے مشرف عالم ذوقی کے افسانے سنی کو الوداع کہتے ہوئے کا ذکر کرنا ضروری ہے.
مشرف اکثر اہلوں کے مشاورت سے اپنی کہانیوں کا تالا بالا تیار کرتے ہیں. اس افسانے میں مشرف اس نسل کی بات کرتے ہیں جو ایم ٹی وی کلچر کے ساتھ اپنا سفر شروع کر رہی تھی. اس لبرلزم یا سائیکل نے تو ریا کو ہارمونز کا انجیکشن لینے سے پہلے جوان کر دیا تھا. پہلے بیوی رما بیٹی ریا اور اس کے پاپا کہانی کے وہ کردار ہی جنہیں خواہشوں نے اندھا بنا دیا تھا. اس کہانی کا ایک ایک جملہ ہمیں بھیانک مستقبل کا تصویر دکھاتا ہے. قدیم و جدید نسل کے مابین کشمکش سے متعلق کئی افسانے لکھے گئے، جیسے تاریخ چتائی کا افسانہ آبی سیڑھیاں اور زکیہ مشرقی کا تازہ افسانہ بلیاں اس ذہین کشمکش کی خوبصورت مثال ہے. اپنے اقدار سے چمٹی بوڑھی نسل اور فرض کو میکینکی انداز سے نبھاتی نئی نسل کی کشاکش المیہ کی صورت اختیار کر گئی ہے. ان افسانوں کے اقتباسات سے حساس ذہنوں کے خیالات کی ترجمانی ہوتی ہے. کوٹیشن اور پھر ڈیوری شہر کے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئی. بڑا غسل خانہ سمٹ کر باتھ روم بن گیا. چولہے سے گیس نکلنے لگی اور کمروں کی چھتیں اتنی نیچے کھسک آئی کہ سیدہ بیگم کا دم گھٹنے لگا. آگے سیڑھیاں تاریخ چھپائے. اس افسانے میں بیک وقت شہری اور قصباتی زندگی کا تضاد ذہن میں ابھرتے ماضی اور حال کے لمحے ریل کی کھڑکیوں سے تیزی سے گزرتے منظر کی طرح نظر آتے ہیں. افسانہ آبی سیڑھیاں کے اختتام پر سیدہ بیگم کا چھت سے خندیر اتارنے کا عمل ایک تہذیب کے خاتمے کا اعلان ہے. تنہائی بے چہرگی جیسے موضوعات پر بھی افسانے لکھے گئے. ان کے علاوہ فسادات معاصر افسانے کا ایک اہم موضوع رہا ہے. اس موضوع پر 19ویں صدی کے افسانہ نگاروں نے آزاد ہندوستان کے فضا میں پھوٹنے والے فرقہ وارانہ فسادات کے ہولناک مناظر کو لفظوں میں قید کیا ہے. ویسے بابری مسجد کے انہدامی واقعے کے بعد پھیلنے والے فسادات اور گوجرا کان پر دلوں کو چھونے والے افسانے لکھے گئے. اس موضوع پر لکھا گیا شوکت حیات کا افسانہ گنبد کے کبوتر ایک اہم افسانہ ہے. اقلیتی طبقے کی شناخت ختم کرنے کی کوشش، لاقانونیت، غارتگری، جبریت، موج مستی یعنی زندگی کے مختلف رنگوں کو اس کی آیاتی انداز میں بیان کیا گیا ہے. فسادات سے کئی مسائل سر اٹھاتے ہیں مگر کاروبار زندگی کہتا نہیں. ایسے میں کرفیو ایک عذاب بن جاتا ہے جس سے انسان بے دست و پاک ہو جاتا ہے. افسانے کے اختتام پر فسادگار کے بے بسی کا ملاحظہ ہو. بیوی سے اس کی نکاح میں ملی تو اسے اچانک احساس ہوا کہ گھر میں میت پڑی ہے اور باہر کرفیو میں اس کی تدفین ایک سنگین مسئلہ ہے. یہ المیہ اپنے ہی طبقے کے ہر اس معصوم فرد کا ہے جو بے گناہی اور شرافت کا خمیازہ بھگت رہا ہے. اس موضوع سے متعلق ساجد رشید کا افسانہ ایک چھوٹا سا جہنم، بے احساس کا افسانہ پناہ کی تلاش اور معین الدین کا افسانہ تعبیر کا کامیاب تخلیقات ہیں. گلزار کے کئی افسانوں میں مذہبی جنون، دہشت گردی اور خوف و ہراس کی فضا ملتی ہے. خصوصاً ان کا افسانہ دماغ مذہبی جنونیوں کی شر انگیزی کو درشاتا ہے. علامتی اور تجریدی افسانوں میں عورت کا کردار پوری طرح ظاہر نہیں ہوتا، البتہ جنس کے موضوع پر علامتی اور تجریدی کہانیاں ملتی ہیں. مشرف عالم زوہی کا افسانہ بھون میں ایلس ایک خوبصورت افسانہ ہے. اس میں بریسٹ کینسر کی شکار عورت کا نفسیاتی تجزیہ بڑی خوبی سے کیا گیا ہے. آج عورت زندگی کے ہر موڑ پر، ہر منزل پر موجود ہے. پولیس اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن، عدالت، اسپتال، کالج، بس کوئی جگہ اس کے خطبوں کے لیے اجنبی نہیں رہی. آج وہ ہر جگہ موجود تو ہے لیکن ہر مقام پر وہ استحصال کا شکار ہو رہی ہے. وہ اب موم کی مریم نہیں رہی، مرد کی درندگی کا مخالفہ کرنے کی ہمت اس میں آ گئی ہے.
سرور خان کا افسانہ میں مرد مارگری، یہ افسانہ عورتوں کی نفسیات اور ازدواجی زندگی مسائل سے متعلق ہے۔ سستی شہرت اور جنسی لذت کی غرض سے لکھے گئے افسانے بہت جلد اثر کھو لیتے ہیں، البتہ جنسی استحصال یا جنسی ناآسودگی کے موضوع پر لکھی گئی لاجونتی اور ٹھنڈا گوشت جیسی کہانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ شمول احمد کے افسانے سنگھارنا اور منرل واٹر میں ازدواجی رشتوں کی پیچیدگیوں کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ سلام بن رزاق کا افسانہ بجو کا عورت کی جنسی ناآسودگی پر لکھا ہوا ایک کامیاب افسانہ ہے۔ تاریخ چٹائی کا افسانہ جنسی موضوع سے متعلق لکھا گیا ایک علامتی افسانہ ہے۔ اس میں جنسی گھٹن کا تصویری بیان ہے۔ معاصر افسانے کے موضوعات کے علاوہ اس کی تکنیک بھی اہمیت کے حامل ہے۔ ان افسانوں کی تشکیل میں تکنیک کا بڑا عمل دخل ہے۔ دراصل تکنیک کی اس کی شناخت ہے۔ ان افسانوں میں حقائق، داستانی، علامتی، بیانیہ، خود کلامی، اندرونی خود کلامی، فلیش بیک اور فلم کی تکنیک اختیار کی گئی ہے۔ داستانی تکنیک میں بے شمار افسانے لکھے گئے۔ افسانہ نگاروں نے اس تکنیک کے ذریعے خطی متن یعنی پیغمبروں، مہاتماؤں، درویشوں اور بزرگوں کی زندگی سے جڑے واقعات، ملفوظات، اساطیر، قصوں اور کہانیوں کو اصلی مسائل کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔ 21ویں صدی کے افسانہ نگاروں نے علامت، تجلیل اور تمثیل کے حلقوں کو استعمال کرتے ہوئے کہانی پن کو برا رکھا۔ افسانوں میں حکایت کے انداز سے دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بین مطمئنیت کی اصطلاح مابعد جدیدیت افسانے کی دین ہے۔ اس ذریعہ نگاری اور باز گوئی بھی کہا گیا۔ یہ متن سے متن بنانے کا عمل ہے۔ پریم چند کے افسانوں کو متن بنا کر کئی کہانیاں لکھی گئی، جیسے جابر حسین کی کہانی، داروغہ جی کی سواری۔ تھوڑا سا افسانچی کے بارے میں۔ افسانہ اور افسانچی کی تعریف۔ یہ افسانے کے تعلق سے چل رہی ہے۔ افسانچہ نگاری کو قابل اعتماد فن نہیں سمجھا گیا، لیکن ان دنوں اس کی مقبولیت سے بھی انکار ممکن نہیں۔ افسانچہ اپنے اختصار کے باعث اپنی حیثیت کو منوانے میں ناکام نظر آتا ہے، مگر اس فوری اثر پذیری خالق کو چوکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ حال ہی میں ڈاکٹر ملازم عاشق حقانی نے افسانچوں کا ایک عالمی اتفاق پرت در پرت کے نام سے شائع کیا ہے، جس میں 151 افسانچہ نگاروں کے افسانچے شامل کیے ہیں، جس میں پروفیسر حویز احمدی، ڈاکٹر وحید انجم، منصور بخار، مشتاق سعید کے افسانچے اہتمام سے شائع کیے گئے۔ گفتی کے زیر عنوان اپنے پیش رفت میں مناظر عاشق نے افسانچے کی تعریف بہت عمدگی اور سائنٹیفک طریقے سے کی ہے۔ اقتباس ملاحظہ۔ دراصل افسانچہ سائنٹیفک رجحان کی علمبردار صنف ہے۔ ایک کم سے کم الفاظ میں خوبیوں اور خامیوں کو پرکھنا اور بنیادی جزوی باتوں میں فرق کو محسوس کراتی ہے۔ افسانچہ یہ خوص خزاں کی سیکھ ہے، سورج کے 7 رنگوں کی طرح، کیونکہ جب دھوپ کے ٹکڑے کو پرزم میں سے گزرتے ہیں تو اس کے الگ الگ 7 رنگ نظر آتے ہیں، جبکہ بقیہ پرزم کے یہ صرف دھوپ کے سنہرے رنگ دکھائی دیتے ہیں۔ افسانہ اور افسانچے کے کہانی پن میں یہی فرق ہے۔ افسانے کے کہانی پن میں مصنف ان 7 رنگوں کو الگ الگ زاویے سے تفصیل کے ساتھ پیش کرتا ہے، لیکن افسانچے کا کہانی پن وہ پرزم ہے جو ان 7 رنگوں کو اپنے میں سمیٹے ہوئے ہوتا ہے، جس میں کہانی پن کردار مکالمہ، ماحول، فضا، اسلوب بیان اور مقصد پوشیدہ ہوتا ہے، اور جس میں شعوری استدلال، جامع اور محدود وقت کی خیر تربیت یعنی ایڈیٹنگ، امتزاج و تزئین، ڈبنگ، ہدایت، پروڈیوسنگ، ڈائریکٹنگ اور خالی کی توجہ کی مرکز فوکسنگ کو پیش نظر رکھا جائے۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنا مقالہ ختم کروں۔ میں شبیر احمد ڈار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، اور ان کا عنوان ہے ٹیلی ویژن اور ریڈیو میں اردو کا بدلتا ہوا عنصر۔ میں ایسی یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور میرا جو تعلق ہے وہ کشمیر سے۔
انسان کی ابتدائی ضروریات مثلا مکان اور خوراک کے علاوہ جس چیز کی نہایت اہم ضرورت ہوتی ہے وہ ہے رابطہ، کیونکہ انسان جو سوچتا ہے، جو اس کے افکار و خیالات ہوتے ہیں، جو اس کے من میں چل رہا ہوتا ہے، فطری طور پر انسان اس سے دوسروں کو باخبر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی ضرورت کے باعث ارسال و ترسیل کے خط و خواب نمایاں ہوئے، اطلاعات، خیالات، نظریات اور رجحانات کو ارسال کرنے کا عمل بھی ترسیل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد انسانی ذہن کے اطلاع نے آوازوں کا ایک سلسلہ تشکیل دیا جس کو جوڑنے اور ملانے سے زبان معارض وجود میں آئی، جو ترسیل کی تاریخ میں سنگمیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج کی وسیع و عریض دنیا سمٹ کر ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ دنیا کے اس طرح سمٹنے میں برقی ذرائع ابلاغ کی تعداد کی نفی بلا کیوں کر دی جا سکتی، اسی باعث سے ممکن ہو سکا کہ مسافت دوری کا احساس ختم ہوا اور فاصلے قربت کا جامع پہننے لگی۔ برقی ذرائع ترسیل میں ٹیلی گراف اور ٹیلی فون کے علاوہ ریڈیو، سینما، ٹیلی ویژن، سیلولر فون اور انٹرنیٹ وغیرہ آتے ہیں۔ مذکورہ ذرائع میں ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سینما ایسی ذرائع جن سے عوام الناس سب سے زیادہ فیضیاب ہوتے ہیں۔ ریڈیو اگرچہ صرف سمیع ترسیل کرتا ہے مگر اس کی رسائی عوام کی سب سے بڑی طبقے تک ہے، جبکہ ٹیلی ویژن اور پردہ سیمی کے ساتھ ساتھ بصری ترسیل پر بھی قدرت رکھتی ہے۔ مذکورہ چیزیں عوام کو باخبر رکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں تفریح کا سامان بھی وہاں پہنچاتی ہیں۔ مطبوع ذرائع ابلاغ میں خواص کے نظریات بھی سامنے آ پاتے ہیں، جبکہ برقی ذرائع ابلاغ عوامی پسند و ناپسند اور عوامی ترجیحات کے تعین میں زیادہ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ سمیع اور بصری مرشد مثلاً ٹی وی اور سینما اس میں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینما اور ٹی وی کے ذریعے کی جانے والی چیزوں کی تشہیر کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ اشتہارات کی الگا کی وجہ سے ٹی وی اور سینما کے ذریعے آج ایک ایسی ثقافت فروغ پا رہی ہے جسے صارفانہ ثقافت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن، جہاں تک ٹیلی ویژن میں اردو کی حیثیت کا سوال ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہرحال ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں اردو کو مرکزی حیثیت حاصل نہیں جو اسے سینما کے تناظر میں حاصل ہے، مگر اس کا مطلب یہ قطعی نہیں کہ ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں اردو کا کوئی عمل داخل نہیں۔ افسانوی ادب پر مبنی پروگراموں میں لامالہ اس کی ضرورت تو پڑتی ہی ہے، اور چونکہ عشق و محبت ہمارے افسانوی ادب کا ایک اہم جزو ہے، اس لیے وہاں اردو کے استعمال کی بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ موسیقی پر مبنی عام پروگراموں میں اردو بھلے ہی خال استعمال کی جاتی ہو، مگر جہاں تک غزلوں اور قوالی کے پروگراموں کا تعلق ہے تو وہاں اردو کی ایک طرح سے اجازت داری ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس قسم کے پروگرام اب کم دیکھنے کو ملتے ہیں، مگر اس طرح مسلمان معاشرت سے مختلف سیریل بنانے کے چلن دیکھنے کو ملنے لگا۔ شاہین، ہینا، شکوہ، جنت کشمیر اور پاکستانی سیریل مثلاً زندگی گزار ہے، ہم سفر، میری ذات زرے بے نشان، متائے جہاں ہے تو، کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی، پیارے افضل، عشق گمشدہ، خدا اور محبت اور میرا نصیب وغیرہ جیسے سیریل اس کی مثال ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کا طرز رہائش دکھانے کے سلسلے میں اردو کا استعمال کرنے سے ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن کے مختلف چینلوں پر پیش کیے جانے والے کئی پروگراموں میں نام کی سطح پر بھی اردو اسی کا حاوی ہے۔ ٹیلی ویژن کے پروگراموں کے نام مدد جائر ہے، غزل، قدم ملا کر چلنا ہوگا، قیامت کیا حادثہ کیا حقیقت، آپ بھی تھی سات رنگ سرحد کے سنگ، کشمیر نامہ، رشتوں کی گوئی، احساس اور خوشیاں، خبر دن بھر، کرشمے کا کرشمہ، کشموں کا شرارت، تھوڑا جاری تھوڑی نزاکت، مسافر ہوں یارو کہیں کسی روز، دل سے دل تک، بہت سارے نام ہیں جو مقصد کرتا ہوں، تیری میری کہانی، مکمل، تلاش وغیرہ وغیرہ۔ مذکورہ ناموں سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فلموں کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن سیریل اور دوسرے پروگراموں میں اردو زبان کا استعمال مکمل طور پر کیا گیا ہے، کیونکہ مدرجہ بالا سبھی نام اردو زبان کے ان الفاظ سے محفوظ ہے جو کہ اردو میں کثیر استعمال ہے، اور جب بھی یہ نام لوگوں کی سماعتوں سے ٹکراتے ہیں تو فوراً اس کا ذہن اردو زبان کی چاشنی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح خبروں کے شعبہ میں اردو زبان کا چال و چلن بہت زیادہ ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے وہ خبریں جن کو ہم ہندی کی خبر سے نام سے یاد کرتے ہیں ان میں بھی تقریباً 70% الفاظ اردو کے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں کی عام طور پر اردو کے ضرب الامثال، اردو کے محاورے
اور عام طور پر بولے جانے والے اردو کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جس سے بسا اوقات یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ ہندی کے بجائے اردو میں خبر نشر کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پیش قدمی کا سہرا خبروں کے چلن آج تک ایسا ہے کہ اس نے خبروں کی زبان کو عام آدمی کی زبان بنانے کے لیے ایک طرف جہاں بول چال اور باماورہ زبان استعمال کی، وہی اردو الفاظ کو بھی کثرت سے خبر کی زبان میں شامل کیا۔ اس کے علاوہ علاقائی گرین کا کردار بھی قابل توجہ ہے، کیونکہ ان کے ذریعے جہاں اردو زبان کو فروغ ملا، وہی اردو زبان کی علاقائی حیثیت کا بھی اندازہ ہوا کہ کن شہروں میں اردو زبان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ نیز اردو زبان کے بدلتے ہوئے منظرنامے کو سمجھنے میں ان بریفنگ نے خاصا کردار ادا کیا ہے، جس میں حیدرآباد، لکھنؤ، پٹنہ، کولکتہ اور سری نگر وغیرہ اسٹیشن سے اردو میں خبریں نشر کی جاتی ہیں، جن کے چینلوں کے نام ذہن میں ذکر کیے جا رہے ہیں: ڈی ڈی نیشنل، ٹی وی اردو، جے این ٹی وی، سہارا ٹی وی، ڈی ڈی اردو، ڈی ڈی کوشن، جموں کشمیر چینل، زی سلام وغیرہ مذکورہ بالا چند اردو خبر نامہ نشر کرتے ہیں۔ مذکورہ اسٹیشن سے نشر ہونے والی خبروں کو سننے کے بعد اس بات کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ اردو کس قدر قدم جما رہی ہے، اور سنیما کے بعد اب ٹی وی پر بھی اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے کوشاں۔ ریڈیو ٹی وی کے بعد ترقیاتی ذرائع ترسیل میں ریڈیو ہی وہ اہم وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے اردو نے عوام کے دلوں میں رسائی حاصل کی۔ ریڈیو اور اردو کا رشتہ کافی پرانا ہے، کیونکہ اردو زبان ہی وہ واحد زبان ہے جو ریڈیو پر نشر کی جانے والی خبروں کا کما حق ادا کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ریڈیو کی شروعات ہوئی اور اس پر نشر کی جانے والی کسی ایسی زبان کی خدمات دینے کا سوال ظاہر ہوا ہے جو عوام اور خاص دونوں کے دلوں تک یکساں طور پر رسائی حاصل کر سکے، تو اردو کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ اردو زبان ہی ایک ایسی زبان ہے جو عوام اور خاص دونوں کے دلوں کو یکساں طور پر متاثر کر سکتی ہے۔ اب آیا اس کی وجہ کیا تھی، تو اس حوالے سے دو وجوہات سامنے آئے۔ پہلی تو یہ کہ اردو ریڈیو کی شروعات کے زمانے یعنی 20ویں صدی کے ربع اول میں عام بول چال کی ایسی زبان تھی جسے عوام و خاص حد تک رسائی تھی۔ دوسری بات ہے کہ ترسیل کی زبان میں جو خصوصیات ہونی چاہیے وہ سب اردو میں موجود تھی، اسی لیے اردو ریڈیو کی زبان قرار پائی۔ اس سلسلے میں ان شعراء اور اردو والے بڑی کامیاب کوشش کی جو ریڈیو کی آمد کی ابتدائی دہائی میں کسی نہ کسی حیثیت سے ریڈیو سے واپس ہو گئے تھے۔ آل انڈیا ریڈیو ابتدائی سے ادیبوں اور شاعروں کا بہوارہ تھا، ابتدا سے اردو کے بیشتر ادیب کسی نہ کسی صورت میں ریڈیو سے وابستہ ہے۔ اردو ادیب اور شاعروں کے بارے میں یہ بات لوگوں کے علم میں ہے کہ بدرس بخاری سے لے کر سلام بخش کی شاعری اور عبادت سروش تک آزادی سے پہلے آل انڈیا کی اس کام میں 20ویں دہائی میں جہاں راجندر سنگھ بیدی، سردار جعفری، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، اکرم الایمان وغیرہ ریڈیو کی دنیا میں رہنمائی کر رہے تھے، وہی 21ویں صدی کے ابتدائی میں محمود ہاشمی جیسے ادیب نے اردو ریڈیو سے وابستگی کا ثبوت دیا۔ اس کے علاوہ علاقائی اسٹیشن سے روزانہ اردو مجلس کے نام سے پروگراموں کا نشریہ شروع ہوا۔ آپ کو FM اسٹیشن کے شروع ہونے سے غزلوں، نظموں اور قوالیوں کے پروگرام باقاعدگی کے ساتھ نشر کیے جاتے ہیں۔ اس سے ریڈیو پر اردو کی حیثیت مزید مستحکم ہوتی ہے۔ ان سب کے علاوہ نجی FM چینلوں سے نشر ہونے والی زبان اردو واقع لہجے کے بڑے قریب کی چیز معلوم ہوتی ہے۔ ہندی خبروں میں بھی اردو الفاظ کا استعمال بڑھا ہے، ساتھ ہی ہندی میں پیش کیے جانے والے سوشل پروگراموں میں بھی اردو کا رجحان بڑھتا نظر آ رہا ہے، اور کھیل کی خبروں میں بھی شکست فتح، شاندار اور زبردست جیسے الفاظ کی گونج سنائی پڑنے لگی ہے۔ یہ صورتحال خوش آئندہ ہے اور اس سے ریڈیو اور اردو کے تعلقات میں گرم جوشی کا اشارہ ملتا ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ ریڈیو کی صورت میں اردو کو پھلنے پھولنے کے علاوہ بہتر مواقع میسر آئیں گے۔ آج جب ٹیکنالوجی اردو تک پہنچ چکی ہے تو ریڈیو میں اردو کی اہمیت و عبادت اور دوبالا ہو گئی ہے، کیونکہ آج FM ریڈیو کے ذریعے نوجوان نسل تک اردو کو موبائل کے توسط سے جہاں پہنچا سکتے ہیں، وہی موصول ترین حضرات تک کاروں میں استعمال ہونے والے ریڈیو کے ذریعے، اور جبکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات انٹرنیٹ کے ذریعے سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آج جو بھی اردو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں ان میں تلفظ کے ساتھ نہایت ہی بے توجہی برتی جا رہی ہے، لہذا تلفظ کی درستگی بھی کافی ضروری ہے، ورنہ جہاں آج کے زمانے میں ہر چیز ریڈیو کے ذریعے سے اردو کی چاشنی کو محسوس کر رہا ہے، وہی اردو کی روح نہ نکل جائے۔ پہلے جو چیز معلوم ہوئی وہ یہ کہ خواہ فلمیں ہو، ٹی وی کے پروگرام ہو یا خبریں ہو یا ریڈیو کے پروگرام ہو، اردو کا استعمال ذرائع ترسیل میں بڑھتا جا رہا ہے۔ تاہم اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اس مقام پر غلط تلفظ وغیرہ کا اثر بھی
इतना दूर होता है जितना कि उनके फवाइद का। अब मैं अब्दुल्ला अतर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए अपना मुकाबला सुनाएं। नाम मोहम्मद अब्दुल्ला, खलील नाम तशमूरी, पेशे के एतबार से एक सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। उद्वान है इंटरनेट के जरिए उर्दू जबान का बदलता हुआ मंजरनामा। इंटरनेट किसे कहते हैं, इसकी इब्तिदा कहाँ, कब और किस तरह हुई, इन तमाम सवालों के जवाब इंटरनेट के जरिए मिल जाएंगे। इंटरनेट की तारीफ में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इंटरनेट हर तरह के मालूमात का वो सरचश्मा है जो हमें अल्लाह ताला की उस किताब मुबीन की याद दिलाता है जिसमें कायनात की हर एक शय की तकदीर व तफसील दर्ज है, जिसे सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। मुझे इसके जरिए उर्दू ज़बान और अदब के बदलते हुए मंजरनामे पर मुरतब होने वाले मुसव्विर व मंज़िल असरात के मुताबिक अपने ख्यालात का इज़हार करना है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में इंटरनेट की अहमियत और उसकी फायदियत का अंदाजा बस इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की 90% आबादी इससे हस्बे जरूरत इस्तेफादा कर रही है। मौलिका 8 मई इतवार के डेक्कन हेराल्ड में खुसूसी सफात में रोजमर्रा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली 10 अहम अशिया का जिक्र किया गया है, जिसमें इंटरनेट नंबर अव्वल पर है। जिस तरह दुनिया की तमाम अहम जबानों में इंटरनेट के जरिए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के मुताबिक बेइंतहा मालूमात दस्तयाब हो रहे हैं और मुख्तलिफ जबानों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसी तरह उर्दू जबान में भी जिंदगी के हर शोबे के मुताबिक बेइंतहा मालूमात दस्तयाब है और उर्दू जबान वाले भी बकसरत से इस्तेफादा कर रहे हैं। उर्दू के आम खाई के लिए, शेर व अदब के दिलवाने के लिए, उर्दू जबान और अदब वालों का तारीफ के लिए, उभरते हुए शुराओ उलमा के लिए, हत्ता के उलमा दीन व उलमा अदब के लिए भी इल्मी, अदबी, मज़हबी और दीगर मालूमात की तशनीकी बुझाने के तमाम सामान इंटरनेट पर दस्तयाब है। जैसे आपका दीन के शायकीन के लिए तकरीबन 75 से ज़ायद मुल्की और बैरूनी उर्दू अखबार ऑनलाइन पर दस्तयाब है। इसी तरह मजहबी, अदबी और साइंसी उर्दू जरायत और माननामे भी इंटरनेट के जरिए पढ़े जा सकते हैं। ये तमाम अखबार और रसायन की फहरिस्त भी इंटरनेट पर ही मिल जाएगी, जो खास दलील है। हज़्दों के शायकीन के लिए ऑडियो वीडियो हज़्दों का हमारा रुकिया होता है। हमदनात के शायकीन के लिए बेशुमार ऑडियो वीडियो हमदनात दस्तयाब है। इसी तरह मुख्तलिफ हवालों के हवाले भी सुन सकते हैं। अदब के तालिबों के लिए आपका इंसान मौका मिलता है। तहकीक करने वालों के लिए इंटरनेट एक नेमत खैर होता है। इंटरनेट की वजह से दीगर ज़बानों की तरह उर्दू ज़बान में भी अखबार, रसायन और किताबों के अशार आसान हो गई। ईमेल के जरिए बनी बनाई खबरें अखबार वालों को साफ नजर फराहम करते हैं, तो रसायन और जरायत के मुद्दों को ऐसे फलंदा हजरत मज़ामिन और दीगर तकलीफात और शुरा काम अपना काम काम करते रहते हैं, जिससे इंटरनेट से उतार कर उससे तरतीब से आराम करके आशार की मंजिल से गुजारा जाता है। आगे इन्हें खरीद कर भी पढ़ सकते हैं या अगर वो ऑनलाइन पर चढ़ाए गए हैं तो उन्हें इंटरनेट के जरिए से भी पढ़ सकते हैं। इंटरनेट का एक बड़ा फायदा ये भी है कि आप कागज, मशीन, छपाई और अमले के झमेले के बगैर भी अखबार रिसाला निकाल सकते हैं, जिसे सिर्फ ऑनलाइन पर ही पढ़ा जा सकता है। मगर इनके लिए इश्तिहारबाजी के जरिए आवाम को ऐसे अखबार और रिसालों से वाकिफ कराना जरूरी है। नीज ऐसे अखबार और रसायन में इश्तिहारों का एक हिस्सा
अलग से मुकर्रर करके घर बैठे कमाई भी की जा सकती है। ऐसे अखबार और रसायल के निकालने में माली खसारा या दिवालियापन का सवाल ही नहीं है। खबरों तस्वीरों की ईमेल के जरिए हासिल कीजिए और तरतीब दीजिए बंदों बन जाएगा, चाहे वो दो सफात की तरक्की न हो। अहले कलम का गला से तकलीफा को मौजूद हासिल करके तरतीब दीजिए, वो महानामा या सरमाई बन जाएगा जो ऑनलाइन पर दस्तयाब हो जाएगा। अशार की इतनी सहूलत चंद साल कबल किसी के ख्वाबों ख्याल में नहीं थी। फिलहाल जामिया की सतह पर ऑनलाइन जरायत का रिवाज है, लिहाजा उर्दू ज़बान और अदब के हक में भी ये वो जदीद मंजरनामा है जिसका पेश मंजर उसका बेड़ा उठाने वालों के साथ खारिज के लिए भी बड़ी हिफाजत का बाइस है। इंटरनेट की खुद ये है कि इसे दुनिया की किसी भी अहम ज़बान में तब्दील करके इसमें मनचाहे मौज़ूआ को मकामत देखे जा सकते हैं। इंटरनेट के मालूमात के मुताबिक दुनिया 6 अगस्त 1991 में इससे मुताबिक हुई, जबकि इसका आगाज अमेरिका के दफाई शोबे में 1950 में ही हो चुका था। इसके चंद साल बाद 4 फरवरी 2004 में फेसबुक से दुनिया रोशनास हुई, जो इंटरनेट के जरिए अमल होता है। जब से फेसबुक की इत्तला हुई है घर बैठे बेशुमार लोगों से दोस्ती करने और आपस में नजरिया को ख्याल से एक दूसरे को विश्वास कराने का ये खैरत इस बात को ले आया है। इस बात में दाखिल होने वालों में उर्दू वाले भी कुछ कम नहीं। बिलखुसूस उर्दू तलबा, उर्दू असातिज़ा, उर्दू अदीब व शुरा इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। शुरा अपने नगल फेसबुक के जरिए सैकड़ों अफराद तक पहुंचा रहे हैं। तलबा अपने पसंदीदा अशआर और अखबार ज़दीन के अलावा शायराना अंदाज में अपने जज्बात अपनी फेसबुक कम्युनिटी को पहुंचा रहे हैं। आम उर्दू हज़रात भी अखबारों के अहम धारा से दिलचस्प अशआर, अखबार और कहावतें फेसबुक में ला रहे हैं। जिले शिमला जिला उर्दू असातिज़ा के नाम से एक फेसबुक ग्रुप भी है जो आपस में पेशा वाराना और दीगर अहम मालूमात से सबको वाकिफ कराते रहते हैं। फेसबुक के जरिए मुल्क और बैरून मुल्क के मुहिबान उर्दू में दोस्ती व यगानगी का एक लामुतनाही सिलसिला चल पड़ा है। ये उर्दू दोस्ती की एक ऐसी लहर है जिसकी बुलंदी पूरे जमीन के तमाम साहिलों से टकराती है। जब से स्मार्टफोन आम हुए हैं, उनमें उर्दू कंप्यूटिंग की सहूलत होने की वजह से उर्दू में पैदावार और मुबारकबाद इशार करते रहने का चलन फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए आम हो रहा है। वो बुजुर्ग बादशाहों मुहिबान उर्दू जिनके पास स्मार्टफोन है, वो अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू नहीं बल्कि उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उर्दू जबान का चलन इस तरह से आम हो जाए तो उर्दू जबान के हक में ये बड़ी खुशहाली बात है। फिलहाल फेसबुक से ज्यादा व्हाट्सएप का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, क्योंकि फेसबुक के लिए अपने नाम से ऑनलाइन में खाता खोलने की जरूरत है और व्हाट्सएप के लिए किसी खाते की जरूरत नहीं, सिर्फ इंटरनेट का होना काफी है। जो काम फेसबुक से लिए जाते हैं वो सब व्हाट्सएप के जरिए फौरन किए जाते हैं, मगर यहाँ फेसबुक की तरह किसी गुरु या गुरु का होना जरूरी नहीं है। जिनके पास स्मार्टफोन है वो कुरान मजीद के तफासीर, अहादीस के तारीख, मारूफ शुरा का कलाम या इंटरनेट में दस्तयाब किताबें डाउनलोड करके सफर हज़र में जब की चाहे मुताला कर सकते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन मुताले के आदी हो चुके हैं। इस तेज रफ्तारी से बदलते हुए जमाने में बदलते हुए वक्त के साथ बहुत सारे मामलों और कारनामों का बदलना भी एक फिक्री अमल है। आने वाला वक्त इस बात का धमाक है कि पढ़ने वाले लोग रोजाना अखबार की किताबें जरूर पढ़ेंगे, मगर किसी के हाथ में ना तो उर्दू अखबार होगा और ना कोई किताब। ये सब स्मार्टफोन पर होंगे, जिसके लिए हमें अपनी जहन का भी अभिषेक करना जरूरी है। इंटरनेट के जरिए इस बदलते हुए मंजरनामे में जहाँ कानूनी तौर पर कई तब्दीलियां वाक़ई हुई है, वहीं तज्ज़ियाती पहलू भी कुछ कम नहीं है, जिनकी बहस यहाँ जरूरी नहीं। इन पहलुओं से हटकर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मैसेज, फोन कॉल, ईमेल, फेसबुक
और व्हाट्सएप वगैरह वगैरह के इस्तेमाल से उर्दू के आदाब व अल्फाज यकसर खत्म हो रहे हैं। इसका असर ये हो रहा है कि मुस्तकबिल करीब में नई उर्दू नस्ल उर्दू के आदाब व अल्फाज से बिल्कुल नावाकिफ हो जाएगी। आने वाले वक्त में जब उर्दू में आने अखबार, आने किताबें और आने रिसाले दस्तियाब होने लगेंगे तो शायद उर्दू अकेडमी के सरबराहों को भी अपने तर्ज अमल और अपने अमली दायरे कार पर फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। मेरा मतलब है कि उस वक्त उर्दू किताबों की इंतशार का बेड़ा उठाने के बजाय उद्भव शोरा की हिम्मत अफजाई इनामत और इरादा से करते हुए ज्यादा रकम उर्दू पढ़ने वाली नस्ल तैयार करने में खर्च करना पड़ेगा और आने पर भी शोरा उर्दू का नाकाबिल तारुफ जारी रखना पड़ेगा ताकि उर्दू अवाम भी आने पर भी उर्दू अदब के पढ़ने के कायल और रफ्ता रफ्ता उसी के आगे बढ़ जाए। शुक्रिया। Saya Syarifah Masalah dari Syarifah Dewan और मखला पेशरी आपके मखले का उन्वान है तंजो मिजाज का बदलता हुआ मसला। उर्दू का एक आदमी अंजुमन में है जो ऐसा न समझें उर्दू से वो बदगुमान है, शुगर का वो मरीज है, परदेश है उसे उर्दू को लोग कहते हैं शीर ज़बान है। हम जिस माशरे में सांस लेते हैं इसमें ज़हनी कशमकश और बेबसी से निजात नहीं। इन हालात में एक मसाई आपके तरफ बिल्कुल रुक पा गया है। एक ज़रीफ़ाना शेख अचानक पिता को मोहब्बत कर देता है और कुछ लोगों के लिए सही है सही तनाव से निजात पा जाता है। तंजो मिला इसी सूरत हाल का एक अति इजहार है जिसे हमारे अजीमों और शायरों ने बड़े काम किए हैं। कभी समाज के मुसल पहलुओं को आईना दिखाया है और कभी रोज़मर्रा जिंदगी की बीमारियों को उजागर किया है और खुद अपने आप पर हंस कर दूसरों के लिए तस्वीर का सामान वहाँ पहुँचाया है। उर्दू में तंजो मिजाज का सरमाया इतना वसीम मुतनव्वे और रंगारंग है कि इसका एक मजमूई मंजरनामा मुरतब करना आसान नहीं। मुख्तलिफ कुतुब और रसायल में मौजूद मवाद लिखा पड़ा है जिसका काम खाली की रसाई मुश्किल है। 21वीं सदी में अरबी तंजो मिजाज एक मुस्तकिल फिलसफा नस्ल की सूरत में अपनी अलग जगह पहचान बना चुका है और इसके अपने वसीले में काफी कदर इजाफे हो चुके हैं। उर्दू अदब में तंजो मिजाज को परवान चढ़ाने में कई अजीबों का हाथ रहा है जैसे रतमा सरशाद, सलीम रबे, खलत रबे, रशीद अहमद सिद्दीकी, बकरत बुखारी, जमीर अल-गफूर, शकील रहमान, मुस्तफा अहमद सिद्दीकी, मुस्तफा हुसैन वगैरह वगैरह मौजूदा दौर में ताज़ा असास में नुसरत ज़की, असद रज़ा, खालिद महमूद, इरफान खालिद, फयाज़ अहमद फैज़ी वगैरह वगैरह। मैं नमूना चंद मज़ा निकालों का ताल्लुक़ फरमाऊँ चाहूँगी। आपका मजमून शायरी के हवाले से है ना? तो मुस्तफा हुसैन वगैरह का नाम ले रही हैं आप, इसलिए पूछा। वो तंजो शायरों के बारे में आ जाइए आपसे। जी, मैं असद रज़ा के साहब के बारे में का ताल्लुक़ करना चाहूँगी। आप एक मज़ाहिरा शायर हैं, इसके अलावा वो एक मुअत्तबर सहाफ़ी, अजीब और आलमी शहरत के हामिल थी। आपने अपने मज़ामीन को जदीद बशरियाती इक़लाक़ के मज़ाहिया फैलाव में इस तरह पेश किया है जिससे आपकी ज़हमत के सबूत मिलते हैं। आप अपने तंज़ीह मज़ाहिया अशार के लिए अनोखे इमामत कायम करते हैं। असद रज़ा के इमामत असर हासिल की साइंसी और साइंस की बेजों की गिरफ्त में आने वाले मशरे और इसमें मुबतला होने वाले मसाइल की तरफ तवज्जो मबसूल कराने में अहम रोल अदा करते हैं। शौक़ कलाम मग़ाज़ी अस्पताल के इनके दीगर मजमूए की इनके मज़ाहिया मज़ामीन ही और ये मज़ाहिया मज़ामीन मजमूए 2003 ईस्वी और 2009 ईस्वी में शाया हुए और क़ारीन ने इन्हें बहुत पसंद किया। अलावा ये असद रज़ा की अदब में एक पहचान नहीं है कि इन्होंने बच्चों के लिए लिखे जाने वाले तंज़ीह मज़ाहिया अदब में एक नुमायां मुकाम हासिल किया है। असद रज़ा संजीदा और तंज़ीह शायरी के लिए भी जाने जाते हैं। अब तक इनके 2 शेरी मजमूए शौक़ कलाम मग़ाज़ी अस्पताल शाया होकर मक़बूल आम हो चुके हैं और बच्चों के लिए बामक़सद कहानियों का मजमूआ चांद नगर की ज़ैर अदब अक़साम में बेहतरीन इजाफ़े करार दिया गया है। इन मौज़ूआत पर दिल्ली उर्दू अकेडमी, यूपी उर्दू अकेडमी और बिहार उर्दू अकेडमी से इनामात हासिल हुए हैं।
उनकी एक नज्म मुलाहिजा हो जो नबी अकबर आबाद के रहे हैं। रहनुमा नामा भाषण जो दे रहा है सुधा वो भी रहनुमा, रिश्वत जो दे रहा है सुधा वो भी रहनुमा, नफरत जो बढ़ाए सुधा वो भी रहनुमा, उल्फत को जो घटाए सुधा वो भी रहनुमा, बातें मना रहा है सुधा वो भी रहनुमा, सपने दिखा रहा है वो भी है रहनुमा। दौलत की भूख को अपनी मिटाने के वास्ते मिलत को खा रहा है सुधा वो भी रहनुमा। जैसे तवे पे मसल व मसलक के बाद होगा रोटी जो सेकता है सुधा वो भी रहनुमा। अपने शराबबंदी की तस्वीर करके अब दारू जो पी रहा है सुधा वो भी रहनुमा। वोटर को फिर चुनाव में बातों के जोर से उल्लू बना रहा है सुधा वो भी रहनुमा। एक और मशहूर शख्सियत ज़ियाउल्लाह खास ने आपका शुमार मुमताज मज़ाहिरों में होता था। आपने मज़ाह के हवाले से शेर और नस्र दोनों में दफा आजमाई की और मकबूलियत के आला मुकाम तक पहुँचे। इनका तबक इन्हीं जमाने से रहा। इनके छोटे भाई के अकाल आफाक में शायर, अदीब और मज़ाह निगार की हैसियत से सारी दुनिया में पहचाने जाते हैं। ज़ियाउल्लाह खास ने पानी को अमृतसर में पैदा हुए, एमए तक तालीम हासिल की। बदाइया शायरी और मुश्तमिल इनका पहला मजमूआ इज़ाफ़त के नाम से 1990 में शाया हुआ। इसके बाद आने वाली किताबों की तरतीब कुछ इस तरह है: ज़िया पाशियाँ, छह खामियाँ, हरे करे और कुल निशानियाँ। ज़ियाउल्लाह खासमी ने संजीदा शायरी भी की, लेकिन इनकी वजह शहरत मज़ाह निगार बनी। ज़ियाउल्लाह खासमी शायरों के अकरम मुंतज़िम की हैसियत से भी नुमायाँ जनाब रखते हैं। तकरीबन 25 बरस माना और ज़राफ़त निकालते रहे। मुशायरों ने निज़ामत के फ़राइज़ भी नहायत मुस्तैदी से अंजाम दिए। आपका इंतकाल 25 अक्टूबर 2006 को शख्स 71 साल की उम्र में हुआ। आपके कुछ अशआर मुलाहिज़ा करें। हज अदा करने गया था, कौम का लीडर हुई, संग बारी के लिए शैतान की जानिब गया। एक कंकर फेंकने पर तुम्हें हिदायत में सभी, तुम तो अपने आदमी थे, तुमको आखिर क्या हुआ। एक गज़ल मुलाहिज़ा करें। कुछ ऐसी आपने मैंने जबी शायरी की, इसके अक़राम ने मेरी खूब पसीराई की। इसके घर पर भी रफीकों से मुलाकात हुई, क्या सुनाऊं मैं कहानी तुझे भिजवाई की। कुछ तो बदनाम थे इश्क के बुरा में हम लोग, कुछ रफीकों ने बहुत हाशिया आराई की। वो भरी बज़्म में देती है मुझे अंकल जी, डिप्लोमेसी ये कैसी है मेरी हमसाई की। मैं जिसे ये समझता था वो रास्ता निकला, बात नियत की नहीं बात है बिनाई की। दोबारा पढ़िए। तुझे याद में मैंने जो जबी साइन की, इसके अब्बा ने मेरी खूब पसीराई की। इसके घर पर भी रफीकों से मुलाकात हुई, क्या सुनाऊं मैं कहानी तुझे भिजवाई की। कुछ तो बदनाम से इश्क बुरा में हम लोग, कुछ रफीकों ने बहुत हाशिया आराई की। वो भरी बज़्म में कहती है मुझे अंकल जी, डिप्लोमेसी ये कैसी है मेरी हमसाई की। मैं जिसे ये समझता था वो रास्ता निकला, बात नियत की नहीं बात है बिनाई की। एक और खाका जो दिलावर पिला के शहनशाह ज़राफ़त असल में मर्द दिलावर ही, वो दरियाए ज़राफ़त के बड़े अच्छे शनावर ही। पेगार इनका तखल्लुस है मगर जख्मी नहीं होते, वो बड़का अपना बिस्तर पर कभी रखकर नहीं सोते। वो अपनी नींद का आत्म तोड़कर करते हैं फोन, कोई सोया हो या जागा हो सभी को फोन करते हैं। ज़िया और खालिद इरफान से है एक रब्त उनका, उन्हीं बर्दाश्त करते जा रहे हैं यह जब्त उनका। ज़िया और खालिद इरफान ही इनके शहजादी, दिलावर उस दिनों की करते हैं वज़ीराई। ज़राफ़त अब भी है जिंदा दिलावर के हवाले से, कि जैसे दूध खाली सब भी मिल जाए हवाले से। दिलावर की बिलाखोरी बड़ी मशहूर थी पहले, किसी को इनकी दावत भी नहीं थी मंजूर पहले। मगर अब क्या वो खाते हैं खुदा जाने के वो जाने, सुना है कौम का गम खा रहे हैं, हम ये क्यों माने। कंडेंस कीजिए। हम उम्मीद करेंगे कि शोरा इस पर तबाह आजमाई करते रहेंगे और उनको अपने कलाम से लुत्फ़अंदोज़ होने के मौके फराहम करेंगे। आखिर में समीन आवाज़ के इस शेर से मैं अपना मुकाबला खत्म करूँगी। शायरी झूठी सही, फसाना ही सही, जिंदा रहने के लिए कोई काम नहीं। अगर आपकी सरवा से गुजारिश करता हूँ कि आए और अपना कोलैबोरेशन आपकी मुखालिफ का मान है उर्दू अदब में तारीख का बदलता हुआ मंजर। मेरा नाम हामिला है।
स्कूल टीचर उर्दू में अरबी इकट्ठा हुआ तो पहले तस्करे की शक्ल सामने आई, फिर तारीफों की तरफ तवज्जो हुई। 18वीं सदी में तस्करों से पहले बादो सामई अपनी पसंद के अशार अपने बयानों में कायद के नाम के साथ खत्म करने से यही बयान नवेसी तस्करा नवेसी के लिए तस्करा निगारी के लिए राहें फराहम की। हालांकि इस वक्त मौजूदा फाकी तस्करा नवेसी की रिवायत भी उर्दू तस्करा नवेसी के लिए मुआविन साबित हुई। इसी तरह कई तस्करे लिखे गए, इनमें खतीब तस्करों में निकात शरा को तनकीदी तवानी और तारीखी लिहाज से अहमियत हासिल है। इन सिलसिला तस्करों की आखिरी कड़ी मौलवी करीमुद्दीन और पेरन का तस्करा तबक़ात शौराए हिंद है। करीमुद्दीन पहले शख्स हैं जिन्होंने तस्करा नवीसी के उसूल मुतय्यन किए और तारीख और तस्करे के फर्क को वाज़ेह किया। नुकात शौरा से लेकर तबक़ात शौराए तक मजमूई लिहाज से जो इंतकाली मनाज़िल तय किए हैं, इनमें कई महासिन के साथ कई मवाद भी नजर आते हैं। खतीब तस्करा के दौर के शायरों के नाम रुपए तहजी के तहत तरतीब देकर अपने मुआसिरीन और खतीब शौरा के शायरों के हालात ज़िंदगी जो इनको बआसानी मैसर हुए खलबंद कर दी, नमूने का नाम पर बेरानी ज़ाहिर कर दी और अरबाब नसर तो तमाम तस्वीरों में नजर किए गए हैं। इसके अलावा न मुस्तनद विरासत में वफात के सुने और न हालात ज़िंदगी का भी और न ही अदब व ज़बान के आवाज़ और इत्तेफाक़ात में पता चलता है। तस्करों की खामियों की वजह से अदबी तारीखों की ज़रूरत महसूस हुई और बावजूद खामियों की अदबी तारीख तस्करों की रिवायती से क्रॉस पॉइंट है, इसलिए इनकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। बकौल डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, ये तस्करे हमारी अदबी तारीख तक़ीम की सरमाया और हमारी कदीम माशियत और तहजीब की बड़ी खबीर कदर यादगारें हैं, इनकी भी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तस्करों के बाद दूसरा अहम संयम तारीख अदब का है। तस्करे जहाँ अमूमन रुपए तहजीब के एतबार से मुरतब किए जाते हैं, वहीं अदब की तारीख के एतबार से लिखी गई और इन एतबार की तक़सीम अमल में आई। ऐसी तारीख अदब जो तस्करा भी और हमारी पहली अदबी तारीख भी है, वो आपके हयात है। आबेया 1880 में ज़ेवर दबाव से आवाज़ हुई। आबेया के ताल्लुक से डॉक्टर मोहम्मद सादिक लिखते हैं, आबेया भारत उर्दू शायरी की तारीख नहीं बल्कि एक तमाना मुहारिर और जिंदगी से लबरेज दस्तावेज है जो अपने माजी को असरों जिंदा करके हमारी आंखों के सामने ला खड़ा करती है। बिलामुबालिमा क़यादत में ऐसी और कोई किताब नहीं। इसमें हर दौर से पहले तमहीदी बयान है और बाद में हर दौर के नुमाइंदा शायरों की जिंदगी और कलाम को पेश किया है। इनका पेशकश का अंदाज तस्करा दौर से मुख्तलिफ है और तारीख के एतबार से सबसे पहले ज़बानी तारीख की नियत की गई है। जहाँ अब तक की तस्करों और तारीखों में नजर निगारों की हालाती जिंदगी और इजहार पर जिसने की महसूस हो रही थी, इस वक्त मोहम्मद यहिया तन्हा ने खैरुल मुसन्निफीन जो उर्दू नसर निगारों पर मुश्तमिल तारीख लिखकर आगाज कर दिया। उर्दू तवारीख अदब के दौर में एक बहुत बड़ा इजाफा करते हुए ऐसी तारीख अदब जो नज़म और नसर दोनों पर मुश्तमिल है और आम लोग सक्सेना की हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर है। ये उर्दू अदब की पहली मुकम्मल तारीख है जो इलाहाबाद से 1927 से पहली बार शाया हुई। इसमें दक्कन के अदब और मुतशरीन के कारनामों के बारे में मुफीद मालूमात हैं। इस किताब की जामियत से मुसन्निफ है। 1919 में इसका तर्जुमा निज़ामुल अस्करी ने बहुत सी तब्दीलियों और इजाफों के साथ शाया किया। इस किताब की इब्तिदा में उर्दू ज़बान की लिसानी और तहसीली शर्तें भी शामिल हैं और तनक़ीदी लिहाज से अहमियत रखती हैं। इसके तर्जुमे की तख्लीकी खूबियों को सराहते हुए डॉक्टर अनवर फरीद लिखते हैं, आगे उर्दू अदब की फजीलत तारीख नजर आती है। तस्करों पर
इन तब्दीलियों से बेहतर अधिकारी टेक्नोलॉजी नए तस्वुरात नजरियात से आशना हुआ। इस तरह 1950 के बाद जितनी भी तारीखें लिखी गई इनमें अपनी जमीनों की तहसील और तफसील और बदल तालीम का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इलाकाई तारीखें भी लिखी गई जिसकी वजह से बहुत से नामानी और गुमनाम तफसील का कारों को तारीख में जगह मिली। आप कंट्रोल कर दीजिए आखिरी हिस्से में आ जाओ। मुल्ताना की तारीख निकाली का नुक्ता है डॉक्टर जमील गालिबी की तारीख है करते है जो 4 हिस्सों में है। इस तारीख का अहम कारनामा यह है कि फर्द वारिस का काम है। तारीख की अहम खुसूसियत है इसमें हर बात सनद और दलाइल के साथ पेश की गई है। सुनैन के मामले में तारीख पर बहुत सा भरोसा किया जा सकता है। इस किताब में तारीख मिलाकर वफात पर लंबे हफ्तों के बाद नताइज सामने आए हैं। इसे ज़बानी तहरीर को बहुत मदद मिली है। यह किताब तहरीरी और तनकीदी दोनों एतबार से अहमियत की हामिल है। इस किताब की तकमील से तारीख अदब का एक बहुत बड़ा तनाज़ुर हो गया है। इस किताब की तमाम चीजें सामने आ जाने पर उर्दू को एक जदीद मुकम्मल मुफस्सिल तारीख अदब मैसर आ गई है और आबे हयात से तारीख अदब उर्दू और बाबू सक्सेना के बाद उर्दू अदब का एक आसान के मैं साबित हुई है। इस किताब की खुसूसियत यह है कि हर दौर में नज़म व नसर और दीगर असनाफ की तारीख का जायजा लिया गया है। इज्तिमाई तारीखों से नुमायां काबिल हुकूमतें की तरक्की उर्दू ब्यूरो तहरीर 4 जिल्दों में उर्दू अदब की तारीख लिखवाई जिसमें डॉक्टर ज्ञानचंद और सैयद जाफर की शराकत से पहली जिल्द मुकम्मल हुई। इसी तरह तबस्सुम काश्मीरी की उर्दू अदब की तारीख शायद इस किताब में एक नए अंदाज से हर दौर के अदब पर असरअंदाज होने वाले अवामिल का मुतालिया करके अदबी तारीख वसी तनाज़ुर में देखा गया है। मजमूई तौर पर इस पे तमाम जदीद तहक़ीक़ात से इस्तेफ़ादा करने की कोशिश की गई है। 2007 के मंगलयान पर आने वाली आखिरी तारीख है उर्दू प्रोफेसर वहाब अशरफी साहब की है जो 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अदबी तारीखों से यह बात सामने आई है कि तज़किरों के बाद अदबी तारीखों की दावत डालियों पर आबे हयात हासिल है। इसके बाद कई तारीखें महज नज़म और कुछ नसर तक महदूद रहे। कुछ तारीखें अंग्रेजी में लिखी गई, कई तारीखें निसाबी और दरसी नौइयत की रही। इज्तिमाई तारीखें भी सामने आई और इंफरादी काबिलों से भी काम सामने आया। अब तक लिखी गई कई तारीखों में पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीख मुसलमाना ने पाकिस्तानों की अहम और मुकम्मल तारीख है। इसके बाद दूसरी अहम तारीख डॉक्टर जमील गालिबी की तारीख उर्दू है। इस तारीख के मुकम्मल हो जाने पर उर्दू अदब को एक मुकम्मल जामे मुफस्सिल मुस्तनद तारीख में असर आ गई है। इनका उन्वान है 21वीं सदी में उर्दू ड्रामे का बदलता हुआ एसोसिएट प्रोफेसर बेंगलुरु महारानी कॉलेज से मैसूर महारानी कॉलेज को डेपुटेशन पर आए। ड्रामे का बदलता मंजरनामा 21वीं सदी का सरसरी जायजा ज़राए तरसील इब्लाग की फराहमी और इसके असर और रसूख ने इल्म मालूमात को अमूल रोक दिया है। नतीजे में सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई है। आज के दौर को इत्तलाह पर धमाकों का दौर भी कहा गया है जिससे ज़िंदगी का हर शोबा मुतासिर है। अगर फन और किताब के मुस्तक़बिल पर कई सवालात हैं। वर्चुअल रियलिटी एक ऐसा धमाका है जो इस तेज़ रफ्तार जिंदगी की दर में आने वाले इंसानी अदाद के खात्मे का ऐलान है। आज वालिदैन अपनी औलाद से बाहसत उम्मीद करने पर मजबूर है वो लड़की ही को बहू बनाकर लाए या लड़के ही को दामाद। जदीद फैसली इजाज़त ने कुदरत के कामों में दखल अंदाज़ी शुरू कर दी है। अपनी मर्जी के मुताबिक खुद को मर्द या औरत में तब्दील कर सकते हैं। मैं जिंदगी के दौर में इंसान मिशन बन गया है। रोबोट इंसान के मुकाबले में ज्यादा ह्यूमन है। मुताला बड़े हौसले का काम है। फुर्सत के लम्हों का फुकदान हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अदब का मुताला करें या ना करें। आज न तो लासमतियत लाया है, बेहतर तूफान हम किया है, गैर ज़रूरी अलामतें नहीं है। जिंदगी का हर शोबा इसका मौजूद है जिसे तकलीफ का महसूस करता है उसे तकलीफी जामा पहनाता है। कहीं वो रिश्तों को संभाल रहा है, कहीं मुख्तलिफ मजहबी जुनूनियों की मजम्मत करता है, बच्चों और औरतों पर होने वाले मज़ालिम की फरियाद करता है, इंसानी पायमाली पर नादम है तो खुशगवार लम्हात से लुत्फ़अंदोज़ी की कोशिश भी करता है। नाकामियों से मायूस
और ज़ात के तौर में पनाहगज़ी न होकर मुसलसल नफरत आजमा है, नाकामियों को गले लगाने का हौसला रखता है। आज उर्दू ड्रामा कितना मोहतरम है। उर्दू ड्रामे के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि उर्दू के कदीम मसनवियों और मरसवियों में ड्रामा या नासिर मौजूद हैं, लेकिन ये बाज़ाबिता ड्रामा नहीं है। ड्रामा अमली ज़्यादा, इल्मी कम है। ड्रामे को अदबी बनाने की कोशिश में हमने ड्रामे को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। पहले उर्दू ड्रामे तबलीगी, तफरीही और तिजारती गरज से मंजर पर आए। आप ये सब जानते हैं, इसीलिए आपने फौरन आगा नशर काश्मीरी को उर्दू का हम शेक्सपियर कहते हैं। इसके बाद जो लिखता है वो अहम रोल अंजाम देता है ड्रामे की तारीख में, और उन्होंने भी ड्रामे को स्टेज से ड्रामे को स्टेज से शरीक किया, और उन लिखता का जो रोल है उसे हम याद करते हुए जदीद और मावाद जदीद की तरफ आना है, क्योंकि उससे पहले 1930 का उर्दू ड्रामे का आलमिया है कि उसे हमने अदबी बनाकर उसके खातिर के लिए हमने मौका दे दिया। उसी जमाने में ड्रामों की जो जरा सी रमक थी वो गाँव की नाटक मंडलियों, नुक्कड़ नाटक, यूनिवर्सिटी के क्लबों और ओपन थिएटर में थी। इफ्ता की वजह से फिर से ड्रामे को नई जिंदगी मिली। इसके अलावा आज़ादी के बाद हुकूमत हिंद ने भी 1949 में इसे अपनी सरपरस्ती में लिया। भारतीय नाट्य संघ कायम किया और बड़े बड़े शहरों में इसके ग्रुप कायम किए, और उर्दू ड्रामा खास तौर से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामे के तहत इंटरनेशनल फेस्टिवल्स का भी इनेकाद किया गया। इसी जमाने में रेडियो ड्रामों को फ़रोग़ हासिल हुआ। ये भी एक लंबी कहानी है। टीवी ड्रामे हैं, सीरियल्स हैं, फिल्मी जो ड्रामे हैं, ये भी क्या है, ड्रामों की एक तरह है। स्टेज ड्रामे को इफ्ता के बाद सबसे ज्यादा जदीद और माबाद जदीद रुझानात से फायदा पहुंचा। इनमें तवाज़ुन और गैर मुल्की तराजीम भी शामिल हैं। लोक नाटक के फॉर्म में भी मुख्तलिफ तजुर्बे किए जा रहे हैं। कथा, कोलाज या कहानी का रंगमंच एक नई इस्तिलाह है। मुख्तलिफ जुबानों के साथ उर्दू की तवाज़ुन कहानियों और नावलों को अपनी असली हालत में पेश किया जा रहा है। कालू भंगी, महालक्ष्मी का पुल, औलाद, बोल दो, कथा कोलाज में मुजफ्फर हनफी और इस्माइल चना की कहानियाँ वगैरह भी पेश की गई हैं। सोलो परफॉर्मेंस के तहत तबादला और तराजीम भी शामिल हैं। सरदार सिंह दुर्गर का पहला ऊपर की मंजिल एक इब्राहिमी नफ्सियाती ड्रामा है। माजी, हाल और मुस्तक़बिल के को इहाता करता है। एपिलोग और मोनोलॉग यानी मुकालमा और कलामी के जरिए किरदार की नफ्सियात की कैफियत की तर्जुमानी है। ये एक तजुर्बाती ड्रामा है, लेकिन आज ये तजुर्बे आम हो चुके हैं। उर्दू ड्रामा आलमी सतह में के मध्य मुकाबिल है। ब्रेक की थियरी ऑफ एलिनेशन हिंदुस्तानियों की लोक रिवायत में रची बसी है। अनवर अजीब का आवाज़ों का कैदी आज भी मौजूद बहस है। खानदान और खुशहाल तत्वों की खोखली, जिनसी बेराहदरी, असर हासिल के मकरोफेब और पुरतसन्नो जिंदगी के सिचुएशनल रियलिटी के जरिए पेश किया गया है। इसके किरदार अपनी पहचान खो चुके हैं। अलामती और इशाराती अंदाज में हमजिनसी की तरफ इशारा है। इसी तरह कई सतहों पर तजुर्बे किए गए हैं। इसकी चंद मिसालें बुलाई जाऊँ। मोहम्मद हसन ने तमाशा और तमाशाई में फ्लैशबैक की तकनीक के जरिए गालिब की स्प्लिट पर्सनालिटी को जाज़िबे और कामयाबी के साथ स्टेज किया था। इसके अलावा ज़ाहिरा ज़ैदी ने ड्रीम प्ले में और उनके लिए सहरा अजीम बहुत ही अहम है। उसमें लायन ही एपिक टेक्निक के अलावा उन्होंने स्प्लिट पर्सनालिटी वगैरह को पेश किया है। फैंटेसी, कठपुतली के अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करके और किरदारों को ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दिया है, जबकि आयरनियत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हुआ करती थी। और चट्टान में प्राइम की ड्रामा दर ड्रामा की टेक्निक का इस्तेमाल है, दोहरेपन या डुअलिटी को मौजू बनाया है। मोहम्मद हसन का जहाब ब्रेक की एपिक पर पूरा उतरता है। शमीम हनफी के नशरी ड्रामे खला के बाशिंदे साइंसी तमसील है, और पानी और पानी की भी लायानी ड्रामा है। हिजरत के मौजू पर जावेद दानिश का हिजरत के तमाशे पुरानी और नई नस्ल के दरमियान फासले अनोखे मसाइल पेश पैदा करती है। मुआशरे की तब्दीली से पैदा शुदा तहजीब कशमकश की ये पहली आवाज़ है। इनके ड्रामों में इंटरटेक्चुअलिटी या माबाद जदीदियत, जिसे मतनी तफायुल भी कहते हैं,
दूसरी तरफ दीप क्षेत्र की टेक्निक है। इसी तरह बहुत सारे हमारे पास ड्रामा निगार हैं, कमाल अहमद, जहीर अनवर, ऐसे कई हैं जिनके इससे जाहिर हो जाता है। तो आज जो जदीद में हैं वो पुराने भी हैं, नए भी हैं, लेकिन आज 21वीं सदी में जिनका नाम ज़्यादा रोशन है उनमें कई नाम है। मैं चंदे का नाम यहाँ पेश करना चाहूँगी। शाहिद अनवर, कमाल अहमद, जहीर अनवर, इकबाल नियाज़ी, असलम परवेज, योगराज और कई अहमियत रखने वाले हिदायतकारों ने उर्दू स्टेज को आलमी सतह पर पहुँचाया है। रमेश सज्जू, राम गोपाल बच्चन, मोहम्मद महर्षि, फैरोज खान, जावेद अख्तर, जमा सिंह, शाहिद अनवर वगैरह अदाकारों में काम करता नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, जूही वगैरह ड्रामा नवीसों हिदायत अदाकारों की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने उर्दू ड्रामे को आलमी सतह पर वक़ार बख्शा है। और ड्रामा आज सिर्फ ड्रामा नहीं है बल्कि नावल, अफसाने, इंटरव्यू, शख्सियत, हर तरह की जो बातें हैं आज हम जिंदगी में जिसे देखते हैं, महसूस करते हैं, उसे भी स्टेज पर पेश किया जा रहा है। इन तमाम के पेश नज़र यानी आज किसी मौजूद की पाबंदी नहीं है, टेक्निक नहीं है, यानी हम एक जज्बे के साथ किसी भी मौजू को पेश कर सकते हैं। गलत 21वीं सदी की इंफरादियत को उजागर करने की शऊरी कोशिश मिलती है और ये ड्रामे मुख्तलिफ नज़रियात और तसव्वुरात से आज़ाद होकर लिखे गए हैं। गैर मामूल अदीब अल्फाज से एतराज़ मिलता है, ज़ुबान बयान में नई मामूलियत है, तसन्नुअ और गैर मामूसियत या अजनबियत से पाक है। तख्लीकी ज़ुबान जज्बे के जरिए कर्ब अंदोज़ अहद का नाला है। मगरिब की चीरा दस्तियाँ जैसे सुपर कवर, बिग ब्रदर, आली, मुतलक़ इलानी, तीसरी दुनिया पर दबाव, खबर गलत, हर तरह की बातें इसमें पेश की गई हैं। लेकिन ये कोशिश ये करनी है कि ये ड्रामे जो भी लोग पेश कर रहे हैं हम लोगों को इसे उर्दू है इस पर दबाव डालना है, क्योंकि आप उर्दू कह रहे हैं, रफ्ता रफ्ता इसका नाम कुछ भी हो सकता है, उर्दू नाम। यह हमारे उर्दू वालों की जिम्मेदारी है कि इन्हें उर्दू ड्रामों का नाम दिया जाए। शुक्रिया। इस सेशन के सदस्य साहब फातिमा हजरा मैं से गुजारिश करता हूँ कि वो सदर के इमाम पेश करें। लिहाजा आज के मकालों के ताल्लुक से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मकाला निगरान ने काफ़ी मेहनत की है, बहुत सही और कोशिश की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी नोक पलट को फिर से दुरुस्त करें, उस पर और कुछ वक्त सर्व करें और उसे ज़रूर शाया कराएं। आज इस सेमिनार के लिए जो उन्वान तजवीज़ किया गया है वो बहुत ही मौजूद है। हमको मालूम है कि अदब समाजी सरगर्मी है और समाज और माशरे में रहनुमा होने वाली तब्दीलियाँ, कैफियत और वाक़ियात का अक्कास अदब होती है और इसका बिल्कुल जिस तरह तब्दीलियाँ होती हैं समाज में, माशरे में अदब पर भी ये तब्दीलियाँ लागू हो जाती हैं। लिहाजा अदब के हर फील्ड पर ये तब्दीलियाँ लाजमी हैं और ये तमाम चीज़ें जिनका अहाता मुख्तलिफ खानदानों ने किया है है। मैं तमाम खानदान को और इस मीटर को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन उन्वान का इंतखाब किया है और अदब पर ये तमाम चीज़ें लागू हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।